Okay, friends, so let me give you the topic for group discussion for Steel Authority of India Limited. And the topic I'm giving you is excessive money spent on marriages, good or bad? Excessive money spent on marriages, good or bad? Excessive money spent on marriages, good or bad? So I'll give you 2-3 minutes to think, then ask each one of you to introduce. Okay, so I think Vivek, you can introduce now. Yes, sir. Good afternoon, friends. As we have given topic for the discussion is excessive money spent on marriage are good or bad. Friends, in my opinion, sometimes it would be good and sometimes it would be bad. अगर हम जो जो मैरिज कर रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं तो मतलब जो ये समटाइम्स शोकेस के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि जो है जो मतलब पेरेंट्स होते हैं समटाइम्स कर्जे में चले जाते हैं तो इस चक्कर में यहाँ पे ये चीज काफी बैड है। बट अगर हम ये चीज करते हैं कि जैसे ये किसी चीज में गुड कब है, जैसे कि अंबानी का जो फ्रेंड्स मतलब अंबानी जो थे हमारे देश के सबसे रिचेस्ट पर्सन है, उन्होंने जो है काफी पैसे खर्च किया मतलब जस्ट एंगेजमेंट में भी वो खर्च करेंगे, मैरिज में भी ऑल्सो। तो उन्होंने जो है मतलब इसे इंटरनेशनल पहचान मिलती है कि जो है कंट्री को सब अच्छे नजर से देखते हैं कि ऑल्दो ये कंट्री काफी अच्छी है। तो दैट्स that's my point about the topic discussion. And now I invite to all of you participate in the discussion so we can reach to the a fruitful conclusion. Good afternoon, Okay, friends. okay, wait, Sunil. Everybody is to Uh, introduce. So let me okay. give feedback. Vivek, again, you are missing the introduction. My main Sorry. point is classification. So classification should also be given. Like friends, the topic given for the discussion today is excessive money spent on marriages, good or bad. In my opinion, this topic is very relevant because a lot of marriages are going on nowadays, and people are observing some of the lavishly conducted marriages. Something like pre-marriage shoots itself of Ambanis and all. They were much in news. So my opinion is, you can give your opinion, and then you can say, I think we should discuss this topic on if excessive money spent on marriages is good, what are the reasons for that? Why do we say that? And if it is bad, what are the reasons for that? Now I open the house for discussion. You have to give classification and start discussion, right? Okay, now over to you, Sandeep. Introduce. Mm. Good afternoon, friends. My name is Sandeep. I would like to take the opportunity to start the group discussion. The topic of the group discussion is excessive money spent on marriage is good or bad. I think this topic is very much related to in today's perspective. In today's perspective, that why people spend money on the marriages first. First, we have to discuss the लोग मैरिज पे पैसा क्यों खर्चा करते हैं, क्या कंडीशंस होती हैं, क्या क्या सोशल एंड इसके अंदर अंडर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि सोशल इम्पैक्ट क्या होते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस की वजह से करते हैं, शो ऑफ करने के लिए करते हैं। कुछ कई बार लोगों के पास पैसे नहीं होते लेकिन तब भी वो स्पेंड करते हैं। इन दीज पॉइंट्स में हम लोगों को डिस्कशन करना चाहिए। सोसाइटी के प्रेशर की वजह से कई बार ऐसा होता है कि लोग मैरिज में ज्यादा खर्चा करते हैं। मैरिज में कितना खर्चा करना ये इंडिविजुअल कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। यहाँ पे गुड या बैड की कंडीशन आई डोंट थिंक होनी चाहिए, पर्सनल चॉइस है। नाउ आई वुड ओपन द हाउस फॉर डिस्कशन टू ऑल ऑफ यू। Good afternoon, friends. Okay, wait. Yeah, Sunil, My, wait. Sunil, I'll give chance to each one of you. So Sandeep, ठीक है, पहले से better है. Your introduction is better than last time. Speed was there. Topic discussion was there. The pace at which you should give introduction, that was also there, and a little bit classification was also there. So GD, which introduction you gave at earlier GD, it was far better than that, right? Over to you, Akhilesh. Unmute yourself, Akhilesh. Unmute. Akhilesh, unmute yourself. Unmute yourself.
Yes, sir. Sorry, sir. Hello, everyone. My name is Akhilesh Chandrakar. I would like to initiate this group discussion with the topic. The topic of the group discussion is the excessive money on spending on marriage is good or bad. I think it is just a showcase to the society about the status of yourself, the rich actually just spend irrelevant money. The money can be used on other things as such as for donation to the necessary thing. Even the middle class or poor class also spend a lot of money just to showcase people. The money can be used on other aspects like for education of the children, uh, like for increasing the increasing the career opportunity for the people. Now I would like to open the discussion for others. Yeah, so Akhilesh, if I compare your introduction with your introduction in the last GD, it is better. It is better. Pace you have increased, the pace at which you are talking that you have increased. Yes, sir. The only There's thing some is, disturbance coming, sir. So वो actually वो फिर बीच में disturbance no issue, I वो उसके consider कारण that also. But still, it was better, and you need to give classification. That part is to be added. I mean, the way classification is to be given, that is the part which is missing. Rest was okay, Akhilesh, right? Okay, Priyanka, over to you. Good evening, everyone. I am Priyanka. I would like to introduce the GD topic which was given today is excessive money spent on marriages is good or bad. Uh, Here it depends on the social status of the family which is doing marriage and also their economical status also. So based on that we can discuss we can discuss this topic today. So now open for all to discuss about it. Okay, so Priyanka, you have opened the discussion very quickly. Before that, you have to comment something on the topic. So, as I tell you, friends, the topic given for the discussion today is excessive money spent on marriages, good or bad. This is a very relevant topic because, as you know, India may lot of marriages. There is a season of marriages. People are going for a lot of marriages. Season is there, and also some people spend a lot of money on the marriages. Now, seeing that many other people also are forced to spend, money beyond their capacity. So, in my opinion, I think excessive money spent on the marriages is not good. But if you find some reason why it is good, I think we should discuss about that. And also, we should discuss about why it is bad and what can be done to stop it. So, I mean, you need to tell how you want the topic to be discussed, and you need to tell what is your opinion on this particular topic. It is a socially relevant topic, actually. Okay, Saurav. Unmute, please unmute Unmute. yourself. Saurav, unmute yourself. Yes, sir. Okay. Good evening, everyone. My name is Saurabh Kumar. I'm glad to have this opportunity to introduce today's discussion. And our today's topic is excessive money spent on marriage is good or bad. तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज के डेट में मैरिज के लिए जो स्पेंट मनी करते हैं वो बहुत ज्यादा करते हैं, अपने लेवल के हिसाब से ज्यादा ही करते हैं। और जैसे कि अभी मैरिज के सीजन्स आ रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि वेरियस टाइप्स ऑफ मैरिज हमको देखने के लिए मिलता है। तो ये एक बहुत रेलेवेंट टॉपिक हो जा रहा है अभी के समय में, क्योंकि लोग एक्सेसिव मनी इसमें स्पेंड करते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर मैरिज में अगर एक्सेसिव मनी स्पेंड कर रहे हैं बियॉन्ड देयर लेवल्स, so it is not good for their family. It should be depend on family background. So if anyone wants to uh, put their points in a good way, then everyone is invited to give their suggestions, to give their points. Okay, Saurav, it was okay, but then the pace at which you have giving your introduction has to be fast. Because if you'll take a lot of time to introduce, somebody will cut you. So pace has to be fast, the pace at which you speak. Number two, classification is to be given actually how you classify this topic of the discussion and what is your opinion on this topic. That is how you are to categorize the introduction part of the GD, right? Girijesh, please unmute yourself and go ahead.
Good evening, friends. So let me take the opportunity to introduce the topic excessive money spent on marriages, good or bad. So करंटली क्या हो रहा है कि सो आपका प्रचलन बहुत ज्यादा है। बड़े लोग जैसे अंबानी के शादी हुए, फॉर एग्जांपल सेलिब्रिटीज हो गए अंबानी, लाइक रिचर अंबानी। सो ये सब क्या है, इनका देख के मीडियम क्लास के लोग भी काफी खर्चा करते हैं। तो मेरे ख्याल से देयर इज टू एस्पेक्ट ऑन दिस। पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होता है इसका, जैसे कि हम लोकल लोग को जॉब वगैरह भी मिल जाता है, पैसे कमाने का मौका मिलता है, और सरकार को रेवेन्यू भी मिलता है। और जैसे कि सरकार अभी प्रमोट कर रही थी कि लोगों को बाहर शादी नहीं करने जाना चाहिए, इंडिया में करना चाहिए, इससे सरकार को फायदा होगा। नेगेटिव एस्पेक्ट ये भी है कि लोग दिखावा के चक्कर में अपना मतलब लोन ले लेते हैं, इससे काफी मतलब निगेटिव एस्पेक्ट होता है। तो हमें मेरा ओपिनियन ये है कि बैलेंस बना के चलना चाहिए। डोंट नीड टू शो ऑफ एंड मेक प्रेशर ऑन आवर माइंड। So now I want to open the to discuss on this. Okay, Girijesh, Thank you. it was okay, but आपने बहुत ज़्यादा time ले लिया. I mean, you took a lot of time to introduce. As I tell you, like if you take long time, if you take more time, somebody is going to cut you short in the GD. So that also you have to consider that you should not take a lot of time so that somebody cuts you. It has to be precise, concise, and fast. That is something which is important, right? Girijesh, the rest is okay. It's better than last time, which you said. Okay, Sunil Kumar. Good afternoon, friends. I'm Day Sunil Kumar. I'm glad to start the discussion. The topic given to us is excess money spent on marriage is good or bad. The topic is of current relevance. Is of current relevance, and in my point of view, it is the excess money spent on marriage is bad because it's not good. Because even though it is a lifetime event, once in a lifetime event, even togetherness of families and even though it is there, but we cannot spend more money beyond our limits. And when comparing with the other people who are spending more amount on their marriages, we cannot we cannot spend more amount of money on marriage. So I open the discussion, and now I open the discussion. Okay, so Sunil, it was That's okay. I mean, the way you gave your opinion, and but you forgot to mention that how you want others to discuss. What do you want the group to Mm. do? You want the group to Yes. discuss in what classification, what headings. So, friends, I want we all should discuss, like, if we think it is not good, what are the reasons for that, and what can be done to Okay. stop it. Second, if we find it good, I mean, excessive money, why do we think that spending excessive money is good? So we should discuss this entire topic in these two headings, and maybe Sure. we should give the examples also where we are Mm. to support our points. So now I open the house for discussion. Something like that classification is to be given. That is something which you missed, Sunil. The rest is okay. Okay. Okay, Okay. now friends, everybody has introduced the topic, and now we are entering into second phase, which is the discussion phase. I'll give you 15 minutes where you can talk, and if at the end everyone needs to conclude, but if you want to conclude, then you need to jot down important points which others are speaking. So make sure you have pen and copy in your hands, friends, and you are jotting down important points which others are saying, so that when you conclude, you people conclude in a better way, right? Go ahead. Friends, in my point of view, one of the reason behind the excessive money spent on the marriage is the social media influence also. People want to show off that they have a lot of money, although people have very less amount of money, but at the time of marriage, they show off that they have a large amount of money. And sometimes due to society pressure, they also want to spend money on marriages also. Sometimes people don't educate their child, and at the time of marriage, they spend large amount of money. I like to I add like to to something. add beyond one I point think here. one thing is that what is meaning of marriage? It is just the basic understanding between two people. A relationship should be developed between two people. I think the money that is spent on other things is irrelevant. Your whole career spending, you are just for this function
not relevant or a good thing. Yes, sir. It is done because from in Indian tradition we have that mindset of spending money just for showing off to people. Let me add a point here. Even if we spend lakhs of money also, even if suppose any unforeseen thing happens, like a food is not good, people will keep on criticizing it, keep on even though you criticizing. spend a lot of money. People will always criticize you, and I think हमारे इंडियन की that's कल्चर है, ट्रेडिशन है, उस कस्टम जो फॉरवर्ड करते हैं जैसे मैरिज में, मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा मनी नहीं, लेकिन उस चीज को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए इतना भी कम नहीं होना चाहिए कि लोगों को पता ही नहीं चले कि हम मैरिज कर रहे हैं। पीपल सोसाइटी प्रेशर में की वजह से क्या है, इसलिए लोग शो ऑफ करना चाहते हैं, कई बार लोगों के पास पैसे नो नो नो, यहाँ पे गलत है, क्योंकि लोन अगर लेके जस्ट खर्चा करते हैं। आप शोकेस, अगर वो बहुत ज्यादा मनी खर्च कर रहे हैं कि शोकेस करने के लिए, तो यहाँ पे ये गलत हो सकता है, क्योंकि उनको अपनी लिमिट के बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर लिमिट के बाहर गए तो क्या ही फायदा शादी करने का, आप कर्ज में चले गए, उस कर्ज को भरते रहेंगे, तो शादी का कुछ टाइम के लिए आपको अच्छा लगा, लेकिन बाद में तो प्रॉब्लम ही हो रही है ना। हाँ, जी हाँ, Here सही बोल रहे हैं, I can सही add बोल रहे हैं one सर। point. I can I add want one to add point. I want to add one point. Yes, क्योंकि इससे ये भी एक, ये अगर ज्यादा मनी स्पेंड करते हैं तो इससे एक दूसरा भी पॉइंट होता है कि जो जो लड़की के साइड से होते हैं उसमें हम लोग, जो लड़के वाले होते हैं वो अधिकतर हम लोग देखे हैं कि उनको फोर्स करते हैं कि वो मैरिज में जो है स्पेंड मनी ज्यादा स्पेंड करें, क्योंकि उनको अपने सोशल लाइफ में उनको ज्यादा अच्छा दिखना रहता है, तो इसमें एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी शो पड़ता है ऑफ के लड़की लिए, वाले पे। मेनली शो शो ऑफ ऑफ के लिए लोग ज्यादा जी जी, शो पैसे ऑफ स्पेंड करते हैं। डिमांड भी होती है, उसमें जैसे कि लड़की वालों को भी ज्यादा एक पीरियड में ट्रेडिशन सोशल में मीडिया भी ट्रेंड है ये, चला है ऐसा जैसे कि मतलब चलते जैसे आ कि रहा है। प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में कैसा है कि डेस्टिनेशन वेडिंग आजकल चल रही है, कि लोग बाहर जाके शादियां कर रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया जाते हैं, टर्की में शादी कर रहे हैं, मालदीव में शादी कर रहे हैं, इसीलिए काफी अमाउंट में पैसे स्पेंड कर रहे हैं। गवर्नमेंट बाहर जाके ना शादी, गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव कुछ निकाला, भी एग्जैक्ट नेम नहीं याद आ रहा है, और उसके लिए किया कि वो हमारे इंडिया में ही शादी करे, ताकि यहाँ के लोगों को, क्योंकि जब तक वो मैरिज एक होती है यहाँ तो कुछ पर लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, तो उस चीज में कुछ ना कुछ इन्वॉल्व करके वो अपना फाइनेंशियल ग्रोथ भी थोड़ा कर लेते हैं उस बीच, क्योंकि सीजन एक यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट भी हो सकता है कि इससे जैसे कि लोग स्पेंड करते हैं, अगर अपनी कैपेसिटी के अंदर स्पेंड करें तो क्या है, इंडियन इकोनॉमी को भी थोड़ा बेनिफिट हो सकता है, अगर लोग कैपेसिटी में अपना स्पेंड कर रहे हैं। ये एक पॉइंट यहाँ पर थोड़ा सा एक गुड एस्पेक्ट ये हो सकता है कि मतलब ये एक मौका होता है टुगेदर, मतलब आपके जो भी रिलेटिव्स हैं वो सब साथ में आते हैं, कि टाइम स्पेंड करते हैं, वो एक अच्छा एस्पेक्ट है। लेकिन इसके लिए एकदम ज्यादा स्पेंड करना, मतलब एक्सेसिव मनी स्पेंड करना, वो कहीं ना कहीं गलत है। कि आप कोई फॉरेन, मतलब कहीं बाहर होटल बुक कर रहे हैं, बहुत बड़ा एक्सपेंसिव फूड ले रहे हैं। Sometimes people want to spend a more amount of money. Food ज्यादा खाना होता है शादियों में, कई बार फूड वेस्टेज भी होता है, बहुत ज्यादा वेस्टेज। कैपेसिटी की जितनी चीजें बेसिक नीड्स हैं उससे ज्यादा अमाउंट ऑफ में खर्चा करने की वजह से यहाँ पे ये है कि हम लोग अपना जो कस्टम ट्रेडिशन उसको इग्नोर नहीं कर सकते, मतलब अगर मनी खर्च करना उस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। ट्रेडिशन आई थिंक उसके लिए एक्सेसिव मनी की जरूरत नहीं है, मतलब जो फॉलो होता है इंडियन मैरिज में कस्टम्स को, उसके लिए एक्सेसिव मनी हमको जरूरत नहीं है। एक्सेसिव मनी मतलब जस्ट टू शो ऑफ टू पीपल कि आप अपना स्टेटस दिखा रहे हैं, जस्ट टू इम्प्रेस पीपल। आई थिंक वो कहीं ना कहीं सही नहीं। ये कब अच्छा है, क्योंकि जो हमारे मतलब कंट्री के सबसे रिचेस्ट पर्सन है, वो लोग जब स्पेंड काफी मनी करते हैं, मोस्ट प्रोबब्ली ये काफी अच्छा होता है कंट्री के लिए, क्योंकि एक पहचान बनती है इंटरनेशनल लेवल पे कि इंडिया जो इतना गरीब नहीं देश है। क्योंकि मैंने सुना था कुछ टाइम पहले एक रियाना करके जो है मतलब सिंगर थी, जिन्होंने मतलब इंडिया पे कमेंट कर दिया था कि जो है इंडिया के लोग काफी पुअर है, मतलब वहाँ पे गरीबी ज्यादा है। तो जैसे रिचेस्ट पर्सन जो, और अंबानी ने मतलब यहाँ पे एंगेजमेंट कराई, और उन्होंने उनको एज ए सिंगर के तौर पे बोला कि आप हमारे एंगेजमेंट। The example of Ambani, do you know that Ambani spent only 1% of their annual income? Only 1% they spent. They I have not think spent even आप जो 1% also. They have spent in their capacity. Although they spent more, but they spent only 1% of their income. जो आप बोल रहे हैं कि इकोनॉमी इम्प्रूव होगा, वो लोगों का नजरिया है देखने का, कि आप बोल रहे हैं कि जैसे फॉरेन में लोग ऐसा भी देख सकते हैं कि आपने आपकी कंट्री में कितनी बड़ी अनइक्वालिटी है। एक तरफ अंबानी जी है, मतलब
वो इनइक्वालिटी को भी देख सकते हैं। वो मतलब I don't think वो that इकोनॉमिकली from अच्छा the होगा, topic, इसलिए inequality should be not our topic. It is तो उस a बीच aspect, जरूर इससे सपोर्ट मिलता है फाइनेंशियली, जैसे कि कैमरामैन हो गया, उस चीज को क्या बोलते हैं, लाइटिंग के लिए जो करते हैं या पावर सप्लाई करने के लिए जो करते हैं, उस उतने टाइम के लिए लोगों को थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता है, जो काफी थोड़ा गरीब होते हैं मतलब। कैटरिंग वाले, जैसे एग्जांपल फॉर एग्जांपल कैटरिंग, काफी लोगों को रोजगार मिलता है इससे। रोजगार और यू कैन Jobs should be there, but if a शादी person वहाँ पे is on limits, हमारे research जब अगर लेकिन अनलिमिटेड ये आप मनी स्पेंड कर रहे हैं और फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, तो दैट इज नॉट गुड। आजकल There, देश some people are doing more than what some people are doing more than what they have for photo shoots like that. ये चीज They गलत are हो जाता spending more. है। They are spending more and getting troubles. We can see in news also like that. Some photo shoot issue or like that. They are getting troubles also. They are spending more money and also they are getting troubles. They are borrowing money from others and doing that things to become famous like that. So excessive money spending is getting troubles. क्योंकि जब भी नॉर्मली यहाँ पे Yes, ma'am, you're ट्रेंड right. फॉलो होता है ना कि You are right. लोग इससे कंपेयर करते हैं, अपनी लाइफ को कंपेयर लाइफ के करते हैं फ्यूचर एक किसी सुपरस्टार की लाइफ की, तो उसके लिए कंपैरिजन करते हैं यहाँ पे। काफी मतलब कर्ज ले लेते हैं, बैंक से ले लेते हैं या किसी और जगह से कुछ कर लेते हैं कुछ परसेंटेज पे। शादी तो हो जाती है, लेकिन वो जो लड़की वाले रहते हैं उन काफी कर्जे को अदा करने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, जो कि मेरे ख्याल से सही नहीं है। मतलब यस इवन सर, ये जहाँ यस सर, दिक्कत है, उन लोगों को ये चीज सोचना चाहिए कि हम इतना ज्यादा डिमांड ना करें कि उसके लिए वो मतलब जो कर्जे ले। यहाँ पे यहाँ यस पर यू आर राइट। मैं अपने इससे एक ये पॉइंट भी को होता है कि एक्सटेंड करना फ्यूचर चाहूंगा कि फ्यूचर सोशल स्टेबिलिटी जो मीडिया रहता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है सर। जैसे कि अभी हम लोग इतने इन्वेस्ट करके कहीं से भी बोरो ले लेते हैं, कहीं से भी कैसे भी करके हम लोग जो इतना दिन से जो सेव करके मनी रखे रहते हैं, उसको हम लोग एक दिन में विद इन अ वीक हम लोग इसको खर्चा कर देते हैं। तो इससे हमारा क्या है कि फ्यूचर का जो प्लानिंग रहता है फ्यूचर में हम लोग फोकस नहीं कर पाते हैं, हो क्योंकि जाती है, हम इतने फाइनेंशियल खुश रहते हैं हो जाती है। फ्यूचर में उसको फोकस नहीं कर पाते हैं। अगर वही मनी को अगर हम फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करते तो हाँ उससे हमारा लाइफ के एक अच्छे तरीके से भी जा सकता यस, है। हाँ, समटाइम्स यहाँ हेल्थ पर इशू मैं हो जाता है। एक पॉइंट को एक्सटेंड करना चाहूंगा। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस की वजह से लोग ज्यादा स्पेंड इसलिए करते हैं क्योंकि लोग जिन लोगों को फॉलो कर रहे हैं देखते हैं कि वो लोग काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड कर रहे हैं एक बेटर वेडिंग के लिए, तो लोग खुद को भी कंपैरिजन करते हैं कि मुझे भी ऐसा करना चाहिए। लोग उन्हीं को फॉलो करते हैं सोशल जो लोग काफी यस ज्यादा सर, स्पेंड करते हैं, यू आर ये नहीं राइट। कि नहीं लेकिन करते। सर यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा सर। क्या है, जब से सोशल मीडिया जब इतना एक्टिव नहीं हुआ था उससे पहले भी लोग खर्चा करते यस, थे। तो सर ये पॉइंट यहाँ, हाँ नहीं ठीक है, ये उस बात टाइम सही पर है कि सोशल मीडिया की वजह से उस ज्यादा उस हो रहा है, टाइम पर लेकिन उस इससे टाइम पहले पर भी उस होता इंडियन टाइम था। पर ट्रेडिशन में क्या करते थे मतलब उस कि टाइम पर जनरेशन से चलते आ रहा है कि एट आपको दैट मैरिज टाइम में यस ऐसा सर, करके जनरेशन से रखो, चलते आ रहा है। या ये कि वो मतलब कोई भी सेक्शन ऑफ पीपल हो, वो पहले रिच हमारे सेक्शन भी हो, मिडिल सेक्शन भी हो, पुअर सेक्शन भी, वो एक्चुअली दिखावा के लिए मतलब हैवी अमाउंट ऑफ मनी हाँ, को ये स्पेंड शुरू करते से हैं। चलते हुए आ रहा है। जैसे कि पहले ये के टाइम मतलब में सोशल मीडिया प्री वेडिंग होती है, का पोस्ट इम्पैक्ट हो वेडिंग रीजन सकता है। है नहीं कि होता था, लेकिन जस्ट हम किसी की मैरिज में गए, हमने मॉडर्नाइजेशन देखा कि काफी अच्छा उन्होंने व्यवस्था कर रखी है, तो उस हिसाब से हम भी स्पेंड करते थे। पहले इस टाइप से होता था स्पेंड पोस्ट मैरिज मोर। तो काफी चीजें होने लगी जो कि पहले नहीं होती थी। ये जस्ट मॉडर्नाइजेशन ऑफ दी मतलब सोसाइटी की वजह से सारी चीजें हो रही है, जो एक्स्ट्रा मनी खर्च हो रहा है ये थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन की तरफ भी मतलब पॉजिटिव प्री वेडिंग शूट वगैरह और जो है क्या बोलते हैं पोस्ट वेडिंग मतलब शूट जस्ट मैरिज डेस्टिनेशन वेडिंग हजारों शादियां होती है शादी सीजन। तो इससे क्या होता है कि आजकल ये एक तरह से वेडिंग वो एक तरह सेक्टर ही बन गया है। तो इससे रोजगार को भी बढ़ावा मिला मतलब सरकार को रेवेन्यू में इससे बहुत ज्यादा आता है। तो पॉजिटिव थिंग भी है इसके, कुछ गुड थिंग भी है। बट एट द पर्सनल लेवल आई थिंक नहीं वो तो है। बट उसके लिए आप नहीं इतना भी मनी स्पेंड नहीं कर सकते कि आप पे वो इम्पैक्ट डालना चालू कर दे कि आप कर्जे में चले जाए, फिर आप पूरा लाइफ यस टाइम बस सर, उसी यस के सर, लिए यू आर सेइंग राइट। स्पेंड यस करते सर, यू आर सेइंग राइट। तो सेम यही कहना ये है कि अगर जिसके पास पैसा है तो अपना एक्स्ट्रा वो खर्चा कर सकता है। जैसे कि अगर किसी का इनकम अगर है करोड़ों में है, जैसे कि एग्जांपल अंबानी का दिए, अडानी का दिए, तो सर उनके पास क्या पैसे बहुत हैं। अगर समुद्र में से चुल्लू भर पानी निकाल लेंगे तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ जस्ट पे लाइक दैट, हो अगर जाती है। उनके पास उतने पैसे हैं तो अगर वो खर्चा कर रहे हैं, अगर शो ऑफ कर रहे हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है।
लेकिन They अगर are बोरो लेके not अगर spending उनको the amount of कंपेयर money. They करके have spent only 1% of their annual income. They have not spent so much amount of money. You usually think that they spend a lot of But money, in but comparison yes, to yes. general I think कंपैरिजन के बेसिस पे उसका ले भी सकते हैं. एक यूज हो सकता था एज अ जस्ट सोसाइटी को डोनेशन जो में भी जा सकता था कि इतना ज्यादा पैसा उसमें मतलब सर वो तो कहीं ना कहीं Yes, मतलब सर यू आर राइट, लेकिन डोनेशंस तो उनके पैरेलल में जो चलते हैं, जो भी उनके स्कीम्स है वो तो करते ही हैं। हालांकि अगर एक दिन के लिए इनका देखते हैं, जैसे उनके लाइफ में वो इतना कमाए हैं, इतने उनके नाम है, पूरे इंटरनेशनल लेवल में उनके सारे कंपनीज चल रहे हैं, तो अगर वो अपने बच्चे के लिए अगर इतना शादी में अगर कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल में शो ऑफ कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो उनका भी एक इमेज स्टैंडर्ड सेटअप होता है। लेकिन अगर मिडिल क्लास में भी देखेंगे, जैसे कि अगर एक स्टेट में अगर किसी सीएम का ले लें या फिर कोई भी जो हमारे पार्षद रहते हैं, उनके पॉलिटिक्स या फिर कोई बड़े बिजनेसमैन को भी अगर देखें, तो वो भी अपने लेवल पे खर्चा करते हैं सर। जैसे वो अपने सिटी में अपने जिस सोसाइटी है उस लेवल पे वो उतना खर्चा करते हैं, ये नहीं कि वो पूरे इंडिया लेवल में जिस टाइप का वो किए हैं वैसा नहीं करते। तो सर अपने अपने लेवल में हर कोई करता है। हाँ, लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि उनको देख के सोशल मीडिया में फॉलो वो लोग करते हैं जिनके पास उतना मनी रहता नहीं है, तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट में हो जाता है। लेकिन अगर देखें तो ये जब सोशल मीडिया नहीं था उसके बाद भी ये पुराने जमाने से, जैसे जो जमींदार होते थे, तो वो उस लेवल का वो अपना ऑर्गेनाइज कराते थे। हालांकि वो तरीका अलग अलग रहता था। अभी न्यू न्यू आ गया है, पोस्ट वेडिंग, प्री वेडिंग ये आ गया है, वगैरह वगैरह आ गया है, लेकिन पहले भी अलग जो अलग हमारे तरीके से खर्चा किया कुछ जाता टाइम पहले जो मैरिज हॉल वगैरह में भी शादी उतना नहीं होती थी, लेकिन प्रेजेंट डेज में मतलब मैक्सिमम जो मतलब जी। कैपेबल होते हैं ट्राई टू मतलब मेक करते हैं वो मतलब मैरिज हॉल में ही शादी करें। ये भी थोड़ा सा मतलब आगे आ गया है कहना चाह रहा था कि बढ़ाने It के will आजकल become a लिए। trend now. हाँ, It will इस become a ट्रेंडिंग में trend. इवन कॉमन पीपल आल्सो वांट टू मतलब बुक मैरिज हॉल फॉर देयर मैरिज आल्सो। यही सर अभी आई I जो think थिंक ज्यादा some of our group members are now speaking. या So यस ग्रीजेस सर, प्लीज कंक्लूजन का प्लीज टाइम हो रहा है सर। अगर कोई अगर और कहना चाहते, जैसे मैम कुछ कह रही थी वो बोल नहीं पाई, अगर वो बोलना चाहती तो ग्रीजेश बोल एंड सकती। प्रियंका इफ यू वांट टू से समथिंग। हम यही कह रहे थे कि बैलेंस हम बना के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ बैलेंस बना के दोनों फैमिली के बीच में अगर जो करते हैं तो हम लेस अमाउंट में ही मतलब ना लोन लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, प्रॉपर तरीके से हम शादी मतलब करवा सकते हैं। इवन यू कैन इग्नोर दैट डाउरी ऑल्सो बिकॉज अगर आप यहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं तो जो ये डिमांड होती है कि मेरे को गाड़ी चाहिए, मेरे को इतना दहेज में इतने पैसे कैश चाहिए, अगर यहाँ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं तो मुझे लगता है ये काफी अच्छा स्टेप होगा मतलब एक्सेसिव ना खर्च करने का। ये भी हो सकता है। आई थिंक हम लोग और मतलब एक नया डायमेंशन दे सकते हैं कि व्हाट शुड थिंग कैन बी डन टू अवॉइड दिस एक्सेस मनी इन मैरिजेस। मेरे हिसाब से एक हो सकता है कि जैसे मंदिर में आप मैरिजेस को प्रमोट कर सकते हैं। हाँ फॉर एक वे होगा जो एक्सेस मनी को मतलब वो कम करेगा। एवरीवन यार मुझे नहीं लगता सारे लोगों को मतलब मंदिर में ही शादी करनी But चाहिए। it's इफ based यू आर on individual interest, whether हमारे they in इंडियन this, can do I it on think in this marriages or matter, in temples or we want to यहाँ पे ये change होनी the चाहिए, आप अपने mindset of the डिसीजन में society. रहेगा तो yes, जैसे कि आप उसके अंदर में रह के आप कर रहे हैं, अगर आप मंदिर में करने लायक है तो मंदिर में that कीजिए, depends आप on अगर the people तो उस हिसाब से ट्राई कीजिए। mindset. बट इसमें एक्सेसिव अगर आपके पास मनी है फिर भी आप मंदिर में जाते हैं तो यहाँ पे एक्सेसिव मनी रोकने का ये चीज सही नहीं है नहीं मेरे ख्याल से। तरीका हो सकता है ना इन्फ्लुएंस करने का समाज को। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि रिच पर्सन के लिए है वो, मतलब उन्होंने कि किया था। मिडिल सेक्शन या पुअर सेक्शन मतलब एक मैरिज में कर सकते हैं कंपेयर टू अगर वो हॉल बुक कर रहा है तो उसका खर्चा कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। और यस यस अगर जो आपके पास मनी है वो मनी जैसे आप एक्सेसिव मनी यूज कर रहे हैं, आप रिहाना को बुला रहे हो बाहर से, आपने एग्जांपल दिए हुए, तो हम क्या कर सकते हैं अपने देश में ही वो जो मनी एक्स्ट्रा वो एक तरह से फालतू मनी हम मतलब खर्च कर रहे हैं ना, तो उसका हम यूटिलाइज डोनेशन में या किसी चीज टाइम पे यहाँ तो हमारे जो कंट्री के एक स्टेटस भी तो बन रहा है इंटरनेशनल लेवल पे कि मतलब यहाँ पे यस सर। अदर कंट्री के सिंगर एंड ऑल मतलब बहुत सारे फेमस पर्सनालिटी आ रहे हैं अटेंड कर रहे हैं, जो तो यहाँ से अगर जो status यहाँ के लोग ही खुश रहेंगे तो वो मतलब उनके लिए, लेकिन दूसरे मुझे लगता है कि जैसे जो रिचेस्ट पर्सन उनके लिए सही है मेरे ख्याल से। यहाँ पे मतलब ये जो एक्सेसिव मनी जो है ये कॉमन पीपल के लिए ज्यादा डिसएडवांटेज है, उन Yes. लोगों के लिए मुझे नहीं लगता कि उन लोगों Most Yes, of चले भी the जाएंगे। most of the people are spending their lifetime savings for their daughter marriage. So I think it's better not to spend most of the money on marriage.
एजुकेशन पे मेनली फोकस किया जा सकता है, लेकिन एजुकेशन का भी आजकल बहुत बेनिफिट नहीं, क्योंकि पढ़े लिखे लोग भी जो बहुत ज्यादा है वो भी बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड कर रहे हैं मैरिजेस पे। तो जैसे कि जो शादी एक बार ही होती है लाइफ में, तो समटाइम्स मेमोरी के लिए भी लोग करते हैं। तो ऐसा तो है कि हम मेमोरी को एकदम कंप्रोमाइज करके एकदम सजा के मंदिर में शादी के लिए भी नहीं सही है ना, कुछ मेमोरी के लिए भी तो होना चाहिए। क्योंकि आफ्टर सम टाइम जब हम लोग मतलब थोड़ा ओल्ड एज हो जाता है तो उस चीज को देख के काफी अच्छा फील करते हैं, कुछ मोटिवेशन कुछ हैप्पीनेस के लिए नहीं रहता। इवन वी कैन सी द आवर प्रीवियस वीडियो आर ऑफ मैरिज और हैप्पी मोमेंट फील करते हैं उस समय। तो ये थोड़ा ठीक है समटाइम्स। यस सर, यू आर Friends, राइट। you are ready लेकिन अब to मेरे को conclude लगता now? है कि सर अब मेरे को लगता है कि कंक्लूजन का टाइम हो गया है। अगर कोई कैंडिडेट जो अभी तक नहीं बोला है वो बोल सकते हैं, जैसे कि प्रियंका मैम हो गई, सुनील कुमार हो गए। अगर बोलना चाहते हैं तो बोलते हैं, नहीं तो फिर अगर कंक्लूड करना चाहते हैं तो कोई कंक्लूड कर सकते हैं सर। सौरभ, ये चीजें नहीं बोलनी है अपने वहां पे, ये ऑब्जर्वर का काम होता है, राइट? जीडी में नहीं बोलना है ऐसा। डोंट गिव चांस टू अदर्स इन जीडी। इन जीडी इज डिफरेंट, बट अच्छा ग्रुप डिस्कशन में डोंट गिव चांस टू प्रियंका, यू हैव नॉट स्पोकन, प्लीज स्पीक। नो, नॉट इन जीडी। Okay, now I सर, think we इस conclude one by one. Yes. So Sir, I one by will one, Can I conclude start? one by one, everybody is to conclude now. So yeah, Vivek, please start your conclusion. Uh, Thank you, everyone. I take the opportunity to conclude the topic discussed. As we have discussed a lot of things in support of the excessive money, and it's a or in beyond the excessive money. जैसा कि मेरा मानना है कि मतलब जो है, अगर कोई बंदा बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है तो उसको अपने लिमिट के बाहर नहीं जाना चाहिए। जैसे कि सौरभ आपने पॉइंट दिया था कि कोई भी कॉमन पीपल है उसको अपने बियॉन्ड करना है, तो ये काफी अच्छा पॉइंट है। और सेम टाइम पे जैसे कि गिरजेश ने एक पॉइंट दिया था, मैरिज में मतलब एक्सेसिव मनी समटाइम्स खर्च होती है, लेकिन ये कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए मतलब ये एक रोजगार भी साबित होता है फॉर सम टाइम, बिकॉज वी आर स्ट्रगलिंग। हमारी जैसे लंबी कंट्री की इकोनॉमी में जैसे मतलब काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि गरीब परिवार से आते हैं लोग। और एक सेम टाइम पे ये मतलब जो हमारी कंट्री के रिचेस्ट पर्सन होते हैं ज्यादा मनी खर्च करते हैं शादी में या मैरिज में, तो ये एक स्टेटस मतलब प्रोवाइड करता है कि हमारी इंटरनेशनल पहचान बनाता है कि हम अपनी कंट्री में कितना स्टेबल है, कितने रिच हैं। सो दूसरी कंट्री हमारे पे उंगली नहीं कर सकती कि मतलब जैसे कि ये गरीबों का देश है। तो दैट्स माय पॉइंट अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू। Okay, so as I told you, Vivek, this conclusion is not your point of view, and you are repeatedly saying my point of view. That नहीं is सर, not मैंने exactly. पॉइंट फॉलो का जैसे कि बियॉन्ड द लिमिट मैंने वाला बोला था, इसके बाद गिरजेश वाला पॉइंट बोला था कि जो ये जॉब मतलब जॉब थोड़ी देर के लिए जॉब मिलती है कुछ लोगों को, तो 2 पॉइंट मैंने सर मतलब दूसरे लोगों का भी बोला था। So आपको सबके पॉइंट्स ऐड करके फिर देन यू आर टू ऐड योर पॉइंट। दैट इज तो मेरे को वही पॉइंट याद था लोगों का, तो मेरे को मैंने पॉइंट ऐड किया था सर। Okay, over to you, Sandeep. Good afternoon, friends. I would like to take the opportunity to conclude the group discussion. We have discussed in many dimensions like social media influence, show off, and social impact and social pressure, due to which the people spend a more amount of money to the marriages. Like my friend Girjesh said, that it should be based on the mutual understanding how much amount to be spent on the marriages on both sides, and on both sides people should spend their in their capacity also. लोगों को अपने कैपेसिटी के हिसाब से खर्चा करना चाहिए, ना कि शो ऑफ के हिसाब से खर्चा करना चाहिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। Okay, but Sandeep, you have to give the points of others also in the conclusion. Whatever they have said, I mean, conclusion has to be of entire group. And you can also add your point that what I feel is like it is not the quantity wise, it is not in absolute term how much money you are spending. It is as per your capacity to your income, what percentage of your income you should spend on money. That is, as you are talking again and again. Now, people purchase Mercedes Benz also, people purchase Maruti also. So it depends upon your income and your financial status, and people have different financial status. So nothing can stop people from spending money. Spending money is good for economy, but spending money beyond your means and getting into financial trap is not a good thing. So that is what I think you were talking about, and that is how you can take it सर forward. Yes, थोड़ा Priyanka? सा लेंथ और इंक्रीज करनी चाहिए मुझे सर इसकी नहीं, लेंथ कंक्लूजन अपने की। आप में डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता। अगर आपने सारी बातें बोल दी हैं तो कितना भी लेंथ हो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। ओके यस प्रियंका। from the discussion, I can conclude that spending excess money is good in the case of wealthiest people, and to
to socialize their image and to get a business deals also by that way. It is better for wealthiest people, and it is bad in the case of if the people doesn't have more money and they spend they spend beyond their limit, then their it make them into the troubles. And also uh, some of the points given by our friends, food, if they spend more money on food, then the food is not good, then not good, and people will criticize. That makes a bad image. Yes, that's it. Okay. So that is what Priyanka, you have spoken. I mean, you are to maintain the fluency of your speaking, and you have to provide all the points which others have also given. And it should not be like you have to read and speak. It's like you're referring and speaking, that is required. So that confidence level is required, Priyanka, of conclusion, and you should say, okay, we had a discussion which is good, bad. We could find out some common points, and the common points given by others were, some people said this, some people said that. So the fluency you have to maintain. Fluency is a trouble as of now. Participation also you need to increase. The body participation also was less. That also you have to increase, and you need to stick to the structure. So structure you should have. Uh, you have to participate a couple of times, and then you should jot down the points spoken by others and conclude in at the end. If you stick to these points, then it will be okay, right? Yeah, Saurabh. Okay. I want to take this opportunity to conclude today's session. So, as a conclusion, for after discussion, we got some points in conclusion. Like सबसे पहली बात तो ये हम लोग को conclusion में पता चला कि जिसके पास जितना पैसा है वो उसके हिसाब से अगर उसे खर्चा करे वेडिंग्स में, तो ये बहुत अच्छी बात है। और सेकंड पॉइंट हम लोग को ये पता चला कि जैसे अगर कोई मिडिल क्लास पर्सन है, तो अगर वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मीन्स लड़के साइड से और लड़की साइड से अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अगर वो खर्चा करे, तो ये अच्छी बात है। और फिर तीसरी पॉइंट हमें ये पता चला कि अगर कोई वेरी रिच पर्सन है, वेरी फेमस पर्सनालिटी है, अगर वो अगर अच्छे लेवल पे अगर खर्चा कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पे भी सोशल स्टेटस में हम लोग को बूस्ट मिल सकता है। इसके अलावा और ये भी एक पॉइंट किसी ने बोला था कि अगर एक्सेसिव खर्चा करते हैं, इतना ज्यादा खर्चा करते हैं कि जो फूड है वो वेस्टेज हो जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग पॉइंट है। और इसके अलावा ये पॉइंट भी पता चला कि ये हमारे बिजनेस लेवल को बूस्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं, और वेरियस अपॉर्चुनिटीज हम लोग को मिलती हैं ड्यूरिंग दिस वेडिंग सेशंस। सो दैट्स ऑल माय पॉइंट, Okay, ग्रुप Saurabh, पॉइंट। so you have given points of others also, yours also. Conclusion का pace भी ठीक है. I think this is the right format. You have spoken. Akhilesh, over to you. Okay, I would like to take the opportunity to conclude this group discussion. We have a very healthy discussion regarding the topic, the excess money that is used in the weddings. So we are generally discussing the disadvantages. Some of the disadvantages, like mentioned by Sandeep, like we actually have a society pressure. That's why we keep on spending lots of money. There is also Indian mindset, Indian tradition that is going from generation to generation. That also lead to the excess money used. There are some effects like wastage of food also is up there. So there are also some good aspect that is discussed. One discussed by, I think, Vivek, that it is a chance for revenue from for the government, employment. If wedding it can be used as a like that, but concluding in a general way, only rich people should use their money, I think, and middle class or poor section should adopt for less money, I think. So that's the point. Okay. So Akhilesh, again, everything is okay. Pace you need to maintain. जो पिछली बार आपका था, बाकी आपने सबका पॉइंट्स इस बार बोला है, दैट इज अ गुड थिंग. बट पेस यू नीड टू इंक्रीज. एक पेस के साथ, फास्ट पेस के साथ आपको बोलना पड़ेगा. वो आपको इम्प्रूव करना है. दैट्स इट, नथिंग एल्स. Yes. Right?
Yeah. So Sunil, you are left. Yes, sir. Okay, friends, I'm glad to conclude the discussion. Uh, we had a healthy discussion, and we could not come to we have come to a consensus that uh, uh, excess money spending on marriage is not that good for a middle class people. Uh, and as our friends mentioned, it is showing status to others. Spending more money on marriage is like showing status to others, and if, and we should limit based on our income and our capability. And as our friend suggested that told that in case of dowry and all those things, mutual understanding should be there between bride and bridegroom's side. And pre-wedding and post-wedding shoots are there, and they are consuming taking lot of money and has to be reduced. And social, because of the social impact and social pressure, people are spending more amount on that. So I would like to conclude that middle middle income people has to limit based on their income and their capability. Sorry, you finished? Sorry, you finished? I think network problem. network issue है। ओके देखो चलो ठीक है सौरभ आपने पॉइंट्स अच्छे बोले हैं दैट इज ओके एंड पेस इज आल्सो गुड एट विच यू आर स्पीकिंग द पार्टिसिपेशन इज ओके नाउ विवेक द पॉइंट व्हिच यू आर टॉकिंग अबाउट लाइक यू नो इंडिया का इमेज बढ़ेगा इससे ऐसा नहीं है मतलब दिस दिस इज नॉट ट्रू what is the best way is like friends excessive money spent on marriages excess of everything is bad excessive it should not be there more money spent or less money spent that depends upon person's economic position economic background like if ambanis are spending money for a common man like us that will always be excessive but for him as Sandeep said it is not even 1% of his income so for him you know people want that money should be spent on celebrations they want to purchase big houses they want to take big cars nothing can stop them and should stop them that is their financial status. Moreover, there is some advantage also of spending more because economy comes out of the recession when more spending is there. I mean, when more money circulation is in the market, people are getting jobs, people are being paid, that is okay. But yes, if you're spending more than particular part of your income, and if you're setting a trend, that looks bad. Money should not be wasted. Spending money and wasting money, these are two different things. So when you're calling somebody in from abroad and you know giving a lot of money to him only for one dance, it does not look like money spending. It looks like money wasted. So you can say those kind of things. And also the trend should not be started. If your income does not permit you to, you know, spend so much of money on your marriage, it should not be there. So it should not become a societal need that, okay, irrespective of your whether you have money or not, you should spend on marriages. Given the choice, you should spend money on health, you should spend money on education, you should spend money on your security, and then you should spend money on your later on these things having house priority wise health education having house having you know things in order future security bank balance they're more important than you know spending money on marriages that is more important so if for a common man much money should not be spent on marriages if they should prioritize the things but yes whether it is excess or not that depends on individuals financial status and in India we know that there's a huge variation in the income level of the people that difference is there in the socio-economic background of the people and that gets reflected sometime but spending a lot of money and telling people that we are rich no if you ask some abroad people that Ambanis are spending so much money they still will say there is a reason India is poor some people a handful of people have a lot of money others are having the other reality is 80 crore people are getting free Yes, sir. food in our country that is another reality of our country on one Even side is इंडिया we में are सर spending 8 3 to 4% crore rupees to somebody who is coming for dance. These kind of things, right? सर yes आपसे sir. एक रिक्वेस्ट थी कि जैसे जो हम लोग को एप्लीकेशन फॉर्म जो लेके जाना है सर वो कैसे फिल अप करना है वो थोड़ा सा अगर थोड़ा सा टाइम लेके बता देते।
आप इसी सेशन एप्लीकेशन में। फॉर्म में Biodata भेजो एंड आई हैव अ सेशन विद यू फॉर दैट। यस सर। मेरे को सर एप्लीकेशन फॉर्म एक भेजो। एक चीज और पूछनी थी सर, जैसे कि मैं जॉब कर रहा हूँ तो अभी फाइनल एनओसी बन के नहीं आई है, तो इंटरव्यू टाइम में सर प्रॉब्लम हो सकती है? मैंने एप्लीकेशन जो दिया था वो मेरे पास है डिपार्टमेंट में। हाँ, इंटरव्यू के टाइम पे यार कई बार तो अलाउ नहीं करते हैं आपको इंटरव्यू देना अगर आपके पास एनओसी ना हो। दैट इज द फैक्ट। द फैक्ट इज कि अगर आपके पास एनओसी ना हो तो कई बार वो आपको इंटरव्यू यस देने सर। नहीं देते हैं। ये फैक्ट है। तो ये अब आपके ऊपर है नहीं कि वो आपको कितना अलाउ करेंगे, राइट? सर, जैसे कि मैंने जो अप्लाई किया था वो मैं आपको सर व्हाट्सएप पे भेजता हूँ, आप थोड़ा सा बता दीजिएगा एक बार। ये जो नंबर आपका दे रखा है मैं उसे व्हाट्सएप कर देता हूँ, चलिए कोई नहीं, आई विल सी दैट। जो लेटर मेरे एनीथिंग पास रिलेटेड है। टू सर जीडी फ्रेंड्स? का फॉर्म को जो फिल करने सर के सर ऊपर जीडी बनता एनीथिंग है रिलेटेड टू जाएगा। जीडी या? यस सर। सर मैं अभी जो सर हिंदी यहाँ पे लैंग्वेज जो हमने मैं ये चीज मिस किया, जैसे कि जो हम एक्सेसिव मनी कर रहे हैं वो चीज हमने किसी ने भी कंसीडर नहीं किया कि हम कितना हमें अर्न करना है, उसके रिस्पेक्ट में हम कितना खर्च करेंगे। दैट इज वाई सर मुझे लगता है कि ये मतलब एक आइडिया लिमिट नहीं फिक्स कर पा रहे थे कि एक्सेसिव मनी किसके रिस्पेक्ट में। तो हमने पूछना तो था मुझे ना लगा सर, क्वेश्चन। यू शुड हैव आस्क्ड पीपल दिस क्वेश्चन। यू ये शुड सर हैव दिस यहाँ पे सब क्वेश्चन। लोगों ने इसे miss किया कि हम कितना अर्न करना है और कितना खर्च कर रहे हैं, उस पे इस चीज हमने सर नहीं बोला। हम लोग केवल एक्सेसिव मनी पे बात करते रहे सर। यहाँ पे ये चीज बोलना चाहिए था हम लोगों को कि सर कितना अर्न करें उसके रिस्पेक्ट में हमको कितना खर्च करना है। दैट्स डिपेंड हाउ एक्सेसिव इट इज। Anyhow, I have given the points, friends, and these are the points at which you have to focus. So nothing to worry. Yeah. Anything else, friends? सर सर मेरा एक डाउट है। जो सर मैं अभी जो हिंदी लैंग्वेज जो मैं यूज किया था वो ठीक है सर? हिंदी लैंग्वेज ठीक है। जैसे, हाँ हाँ, यू क्योंकि कैन रनिंग डू इट। लैंग्वेज था तो। कोई ट्रबल नहीं, आप कर सकते हैं। हिंदी में आप और पार्टिसिपेट कर दूसरा सकते हैं, करना भी चाहिए। और सर दूसरा दूसरा डाउट ये था कि जैसे कि आप सर बोले कि जो इंटरनेशनल लेवल पे बूस्ट नहीं मिलता है, तो सर जैसे डिस्कशन में तो ये वाली बात उठी थी, तो सर इसको लास्ट में कंक्लूड करना सही नहीं रहेगा सर? जैसे कि भले ही वो गलत बात हो सकता है, लेकिन वो डिस्कशन में तो वाला पॉइंट उठा था, तो उसको इंक्लूड करना है कि नहीं करना? कर सकते हैं उस तरीके से कि देखिए एक पॉइंट ये भी डिस्कशन में है, सम पीपल सेड के दिस हैज टू बी देयर। उसमें बोला जा सकता है, क्या ट्रबल है उसमें? सम अच्छा। पीपल फेल्ट दैट दिस शुड बी देयर, तो उस तरीके से बोल सकते हैं। और सर ऐसा भी अगर कोई पॉइंट अगर डिस्कस नहीं हुआ है, लेकिन एट अ टाइम जब कंक्लूड कर रहे हैं तो उस समय अगर कोई पॉइंट ऐसा न्यू पॉइंट आ रहा है तो उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं कंक्लूजन? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन नया पॉइंट कंक्लूजन में नहीं होना चाहिए। पॉइंट वहीं पे होना चाहिए जो पहले डिस्कशन है। देयर शुड नॉट बी एनी न्यू पॉइंट डिस्कस्ड इन द कंक्लूजन, इन माय ओपिनियन। ओके। यस सर। क्योंकि सर वो कंक्लूजन देने के टाइम एक न्यू पॉइंट आ रहा था तो मैं उसको बोलना चाह रहा था, लेकिन उसको नहीं बोला मैं क्योंकि वो डिस्कस नहीं हुआ था। That's not required. I think you should only speak what is something which is, right, friend? यस सर। Chali, I take leave of you friends now and keep revising this, right?